وہ اپنا ماتھا مسلتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پہلو میں بیٹھی اس لڑکی کو بیزاری سے ایک نظر دیکھتا اور پھر منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا جا رہا تھا۔ اچانک سے گاڑی کو ایک جھٹکا لگا اور اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ان کی گاڑی کے سامنے کچھ لوگ آ کر کھڑے ہو گئے۔ چلو بھائی، لے کر چلو انہیں، اور نکاح خواہ انتظام کر رکھا ہے۔ وہ شخص پاس آ کر بولا تو لوگوں نے اسے باہر نکالا۔ وہ حیرانگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیا پاگل پن ہے؟ یہ کون ہیں آپ لوگ؟ وہ غصے سے چلایا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی نکاح ہو جائے گا تم لوگوں کا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ محبت کرتے ہو نا تم دونوں ایک دوسرے سے؟ میں محبت کرنے والوں کو جدا نہیں ہونے دوں گا۔ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ شخص بولتا ہوا انہیں آگے بڑھنے کا کہنے لگا۔ انفال کو لگا کہ وہ شخص شاید دماغی مریض ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتا پھر رہا ہے۔ میں اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ صرف میری امپلائی ہے، وہ غصے سے بولا تھا، جبکہ وہ سب لوگ اونچی آواز میں ہنستے ہوئے انفال اور اس کے پہلو میں کھڑی اس نازک سی لڑکی کو دیکھنے لگے تھے۔ امپلائی کے ساتھ رات کے 3 بجے کیا کر رہے تھے صاحب؟ اس شخص کے سوال پر وہ ضبط سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ میں آپ کے سوال کا جواب کیوں دوں؟ ہٹیے پیچھے، ہمیں راستہ دیجیے۔ اوہ باؤجی، ہم راستہ نہیں دیں گے، ہمیں پتا ہے تم لوگ کون ہو، گھر سے بھاگ گئے ہو نا؟ اس شخص نے پاس آ کر آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہمیں راستہ دیجیے، فضول میں میرا اور اپنا ٹائم ویسٹ مت کیجیے۔ وہ غصے سے بولا۔ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے تمہارے گاؤں والے یہاں آئے تھے، مگر فکر نہیں کرو، ہم تمہاری پوری حفاظت کریں گے، اور ابھی اور اسی وقت تمہارا نکاح ہوگا۔ اس شخص کی بات پہ انفال نفرت سے اپنے پہلو میں کھڑی اس معصوم سے حورین کو دیکھ رہا تھا، جو آج ایک کولیگ سے لفٹ لے کر جا رہی تھی اور راستے میں اس شخص کی نیت خراب ہو گئی تھی اور وہ حورین کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ وہ تو حورین کے گھر سے جب اس کے پہنچنے کی اطلاع نہ ملی تو وہ اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ اسے بچانے کی کوشش میں وہ خود پھنس گیا تھا اور پھر اسے گھر چھوڑنا چاہا، لیکن اس کی گئی نیکی اسی کے گلے پڑ گئی۔ حورین کے گھر والے بھی اسے گھر سے نکال کر انفال کے حوالے کر گئے تھے، اور اب جب رات کے 3 بجے اسے لے کر یہی سوچ رہا تھا کہ وہ اسے لے کر کہاں جائے، تب راستے میں ان لوگوں نے انہیں روک لیا، اور اب زبردستی وہ لوگ اسے لے کر ایک کھنڈر نما گھر میں آ گئے تھے۔ بندوق کی نوک پر ان دونوں کا نکاح پڑھایا گیا۔ انفال نے حورین کو دیکھا، اس کی ایک غلطی نے یہ سب کیا تھا۔ اس شخص نے 5000 کا نوٹ حورین کو دیا۔ بیٹیاں خالی ہاتھ آتی ہیں اچھی نہیں لگتی۔ حورین کا دل کر رہا تھا کہ اسی کے سر پر مارے، ابھی تھوڑی دیر پہلے جلاد بن کر اس کا نکاح کیا تھا اور اب اس کا مائکا بن گیا تھا۔ ان غنڈوں نے انفال کو یہ سمجھایا کہ اتنی پیاری بچی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ وہ ان کی بات پر غصے سے گھورتا وہ وہاں سے نکل آیا۔ وہ ماتھا مسلتا ہوا گھر کے راستے پر گاڑی ڈال چکا تھا۔ وہ گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس کے پیرنٹس آؤٹ آف کنٹری تھے، تو فی الحال تو وہ یہ معاملہ سنبھال سکتا تھا، مگر آگے جا کر کیا کرنا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی میں اس کے سیسیوں کی آواز گونج رہی تھی جو اسے مزید جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ رو مت، وہ بری طرح دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پر وہ سہم کر دروازے کے ساتھ لگ گئی۔ وہ اس کا باس تھا، جو ہو رہا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، اور انفال کا بس نہیں چل رہا تھا وہ گاڑی کسی چیز میں ٹھوک دے۔ وہ شخص جس نے آج تک کسی کی پسند کی کافی نہیں پی تھی، آج اس کی شادی اس کی پسند کے بغیر ہو گئی تھی۔ بار بار اسے یہ یاد آ رہا تھا کہ اس کا نکاح کیسے ہوا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک مینشن کے سامنے رک گئی۔ گاڑی سے نکلتے اس نے پورے زور سے دروازہ مارا تھا۔ روتی حورین ڈر کر اچھلی، وہ اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ حورین بھی دروازہ کھول کر باہر نکلی، آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی اندر آئی جہاں وہ تھوڑی دیر پہلے غائب ہوا تھا۔ وہ بھی من من بھر کے قدموں کے ساتھ لاؤنج میں آئی، اور اس کے لیے یہ شرم سے ڈوب مرنے والا مقام تھا۔ وہ مینشن جتنا باہر سے خوبصورت تھا، اندر آ کر لگتا تھا جیسے وہ جنت میں آ گئی ہو۔ ایک ایک چیز اعلیٰ ذوق کی گواہی دے رہی تھی، مگر صفائی کی کافی کمی تھی۔ وہاں کھڑی اپنی تمام غم بھلائے غور و فکر کر رہی تھی۔ جب انفال واپس آیا، ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ آج سے تم وہاں رہو گی، وہ تمہارا کمرہ ہے آج سے۔ حکمی انداز میں وہ بولا تو آنکھوں میں آنسو پیچھے حورین سر جھکا گئی۔ انفال کی گرے خوبصورت آنکھیں اس وقت سرخ ہوتی اس کے ضبط کا پتہ دے رہی تھیں۔ اس کے سلکی بال ماتھے پر گرے ہوئے تھے۔ حورین نے آج سے پہلے اسے اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ ویل ڈریس اور ٹپ ٹاپ آفس آتا تھا۔ آفس کی ہر لڑکی کا اس پر کرش تھا، مگر وہ کسی کو دیکھتا بھی نہیں تھا۔ جھڑک دینا تو وہ اپنا حق سمجھتا تھا، اور لڑکیاں کہتی تھیں اگر وہ ڈانٹے نہ تو اتنے اچھے بھی نہ لگتے۔ اتنی خوبصورتی پر ایسا ایٹیٹیوڈ حق بنتا تھا۔ اب جاؤ گی بھی یہاں کھڑی رہو گی؟
वो तड़क कर बोला तो हुरैन कदम कदम चलती कमरे के दरवाजे तक पहुंची। फिर मुड़कर देखा, वो उससे ही घूर रहा था। फिर सर झुकाकर दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। दरवाजा अच्छे से लॉक किया। दरवाजा बंद होते ही इनफाल मुड़ गया, अपने कमरे में आया, जो तमाम कमरों की निस्बत बड़ा और शानदार था, जहां हर चीज का रंग ग्रे शेड्स में था। कमरे का फर्श नरम और आरामदेह था, जिस पर गहरे ग्रे रंग का कारपेट बिछा हुआ था। ये कारपेट कमरे की कुशादगी को मजीद बढ़ाता था। कमरे की दीवारें हल्की और मीडियम ग्रे रंग की थी, जो पूरे कमरे में एक पुरसुकून माहौल पैदा कर रही थी। बेडशीट्स भी गहरे ग्रे रंग की थीं। कमरे में एक खूबसूरत ग्रे रंग का सोफा था, जिसके पीछे सादा मगर खूबसूरत वॉलपेपर लगा था। खिड़कियां बड़ी और रोशन थीं, जिनसे बाहर की कुदरती रोशनी ग्रे टेंट के साथ अंदर आ रही थी, और यह रोशनी पूरे कमरे को एक नर्म और मध्यम चमक दे रही थी। वो चेंज करके आराम का कपड़े पहनकर बेड पर लेट गया। इतनी परेशानी थी कि नींद आना मुमकिन नहीं था। वो आंखें बंद किए इस तरह भी कैफियत में अभी चंद घंटे पहले हुए निकाह के बारे में सोच रहा था, जबकि नींद तो दूसरी जानिब हुरैन को भी नहीं आ रही थी। अपनी बेबसी, बदकिस्मती और शर्मिंदगी पर वो रो रही थी। घुटने सीने से लगाए उसे लग रहा था कि जिंदगी खत्म हो गई, रूह निकल गई और जिस्म जिंदा था। आखिर वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब उसने समीर के साथ घर जाने की हामी भरी थी, और उस शख्स ने उसे अपने दोस्त के घर ले जाकर 2 घंटे तक कैद किए रखा, और उसके बाद सिनफाल ने उसके मोबाइल फोन को ट्रेस करके उस तक पहुंचकर उसे बचाया, और घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया था कि लोग उसे करेक्टरलेस कहेंगे। और आखिर घर वाले उसकी बात क्यों नहीं सुन सके? क्या बेटियां इतनी बोझ होती हैं कि उन्हें डिसऑन कर दिया जाए? क्या लोगों की बातें अहम होती हैं या बेटियां? उसे आज समझ आ गया था कि लोगों की बातें ज्यादा अहम होती हैं। उसके खुले बाल चेहरे पर आ रहे थे। कमरा भरपूर रोशन था। रोते रोते जाने का बांक लग गई। किसी ने सही कहा था कि नींद ऐसी चीज है जो किसी भी हालत में आ जाती है। बैठे बैठे बेड क्राउन से टेक लगाकर वो सो गए। सुबह मामूल की तरह उठते इनफाल ने सबसे पहले बाथ लिया, नहा धोकर फ्रेश हुआ, नाश्ता बनाया, 2 टोस्ट, 2 ऑमलेट, जूस का गिलास। नाश्ता करके तैयार हुआ। हमेशा की तरह निकलकर वो ऑफिस के लिए निकला। उसने हुरैन को उठाना, यहाँ तक कि देखना भी गवारा न किया। अपने अंदर की हालत वो बाहर जाहिर करने वालों में से न था, इसलिए अपनी रूटीन पर वापस आया। तकरीबन 11 बजे वो उठकर बाहर आए। घर सारा साइन साइन कर रहा था। वो कुछ देर इधर उधर देखती रही, मगर उसे इतना मालूम हो चुका था कि बाहर गार्ड्स के अलावा इस घर में और कोई नहीं है, यहाँ तक कि मुलाजमा भी नहीं। वो बहुत हैरान हुई। इर्द गिर्द देखा तो इस बात का यकीन भी हो गया, क्योंकि फर्नीचर हर चीज मिट्टी से अटी हुई थी। वो इतनी गंदगी देखकर बहुत इरिटेट हो गई और बगैर कुछ खाए दोबारा कमरे में आई। दूसरी तरफ इनफाल ऑफिस आकर भी आज का सारा गुस्सा एम्प्लॉयज पर निकाल रहा था। ऐसा लगता था कि बेगम ने सुबह से इनफाल सर को नजरअंदाज किया था। एक लड़की ने दूसरे के कान में सरगोशी की, ये जाने बगैर कि साहब बहादुर अपनी बेगम को नजरअंदाज कर क्या रहे थे। अगर शादी हो चुकी होती तो ऐसा ना होता। दूसरी ने इनफाल की गैर शादीशुदा होने की बात की। तुम दोनों इधर आओ। वो धाड़ा। वो उन्हें बुड़बुड़ाता हुआ देख चुका था। कानों में ऐसी कौन सी बातें हो रही हैं जो मेरी बात से ज्यादा अहम है? इनफाल उस वक्त गुस्से में था। सर, वो कुछ भी नहीं। एक लड़की ने नजरें झुकाकर कहा, आई एम वार्निंग यू, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। दोबारा से मुझे देखकर तुम में से किसी ने कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गेट लॉस्ट। इनफाल ने हुक्म देते हुए कहा, और साथ ही उन लड़कियों को हाथ के इशारे से वापस जाने का कहा। जितना शक्ल से खूबसूरत हो, काश अंदर से भी उतना होता। वो बस सोच ही सकी। ऑफिस से वो 6 बजे निकला और 6:30 बजे घर पहुंचकर मामूल के मुताबिक कमरे में गया। इनफाल ये भूल गया था कि कल एक लड़की को बीवी बनाकर लाया था। नहा धोकर फ्रेश होने के बाद वो ओपन किचन की तरफ आया। खाना बनाते हुए हुरैन का ख्याल आया तो वो उसके कमरे की तरफ आया। दरवाजा नॉक करके खोला। वो सामने बेड के पास खड़ी थी। बाहर आओ, खाना खा लो, वो कहता हुआ मुड़ गया। हुरैन अपने रात वाले ड्रेस में ही बाहर आई, जो कि कंधों से उधड़ा था। किचन के शेल्फ के पार खड़े इनफाल को देखकर उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। आई एम सॉरी सर, मेरी वजह से आपको ये सब सहना पड़ा। मैंने ये सब नहीं चाहा था। मुझे नहीं पता था कि समीर इस तरह का लड़का है। मुझे लगा वो बहुत अच्छा इंसान है। उसने मुझे लिफ्ट दी और मैंने कबूल कर लो, वरना मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। हुरैन ने दामा से सर झुकाकर बोली। इनफाल ने उसे बस निगाह उठाकर सरसरी अंदाज से देखा। ये मुझे क्यों बता रही हैं आप? और इतनी समझदार तो मैं आपको समझते था कि एक इंसान जिसको भी आप जानती भी नहीं हैं।
ठीक से उसके साथ जाने का फैसला कैसे कर सकती हैं? मुझे लगा था कि मेरी एम्प्लॉय में से सबसे ज़्यादा समझदार आप ही हैं, जो कि बैक वक्त यूनिवर्सिटी पढ़ने के साथ साथ ऑफिस का काम भी कर लेती है और वो हर चीज़ मैनेज कर सकती है। मगर मैं गलत था। वो पैन में पास्ता हिलाते हुए बोला तो वो सर झुका अपनी लब कुचलने लगी। पास्ता बनाकर इनफाल ने टेबल पर रखा और 2 प्लेट्स निकाली और साथ ही उसे यूं ही खड़ा देखकर उसने मुंह बनाया। अब मैं मिन्नतें करूंगा तो आप आकर बैठेंगी, वो तंज करते हुए बोला। वो उसके साथ दाएं तरफ कुर्सी पर बैठ गई। अपनी प्लेट में पास्ता निकालकर इनफाल ने पहला नवाला मुंह में डाला। उसने हुरैन को देख लिया। वो वैसे ही बैठी थी। चम्मच को प्लेट में पटक उसने हुरैन की प्लेट में पास्ता निकाला। डोंट वरी, मैं आपके लिए रहाइश का इंतजाम कर रहा हूँ। उसके बाद मैं डाइवोर्स पेपर्स रेडी करवा दूंगा। इनफाल ने इस तरह बोला जैसे कोई खबर पढ़कर सुना रहा हो। तलाक के नाम पर हुरैन का दिल बुरी तरह कांप गया। जो भी था, चाहे निकाह मामूली हालात में ना हुआ हो, मगर वो लफ्ज तलाक उसे अंदर तक खाली कर गया। वो खामोशी से उठी। इनफाल ने उसे देखा। बैठ कर खाओ। नहीं सर, आप खाएं, मुझे भूख नहीं है। जब्त के सख्त इम्तिहान में हुरैन न जाने कैसे अपने आंसू रोक रही थी। वो कम से कम इनफाल के सामने नहीं रो सकती थी, इसलिए कमरे में चली आई। उसके पास कपड़े नहीं थे और इनफाल ने खाने के बाद उसके कमरे में आया और कुछ देर देखता रहा। चेंज कर लो, अब क्या इन फटे हुए कपड़ों में रहने का इरादा है? नाराजगी से उसके कपड़े देखते हुए बोला। सर, मेरे पास यहाँ कपड़े नहीं हैं, हुरैन ने आहिस्तगी से कहा। इनफाल वापस गया। अपने कमरे से एक टी शर्ट और ट्राउजर लेकर उसे दिया। ये तो बहुत बड़ा है, हुरैन ने देकर हैरानगी से कहा। पहनना है तो पहनो, कल तक शॉपिंग करके ले आऊंगा, तो फिर वो पहन लेना, अब गुजारा कर लो, वो स्पॉट लहजे में बोला और फिर बाहर निकल गया। और अगले दिन उसने वाकई से काफी ज्यादा कपड़े लाकर दे दिए थे। उसके अनायात पर हैरान थी। अगले दिन वो मामूल के मुताबिक ऑफिस के लिए निकल गया था और उससे यूनिवर्सिटी जाने के लिए कहा तो वो इनकार कर गई। उसका दिल ही नहीं चाहता था अब जाने को, तो वो क्या करती? उसके लिए तो गोया जिंदगी ही खत्म हो गई थी, जीने का मकसद ही खत्म हो गया था। 6 बजे वो घर वापस आया था। फ्रेश होकर उसने खाना बनाने के लिए किचन का रुख किया। पैन में पहले से खाना बना पड़ा था। उसका माथा मसला। फिर चपाती देखी, मगर नहीं थी। खुद को भी ये नहीं आता था कि चपाती बनाए। वो उसके कमरे में गया, वो सो रही थी। फिर वापस आकर उसने नूडल्स बनाकर खाए। वो लिविंग रूम में बैठा था जब उसे माँ की कॉल आई, जिन्होंने छूटते उसे शादी का कहा था। इनफाल उनसे जान छुड़ाने के लिए वो बोला, माँ, मैंने शादी कर ली है। सुकून से उसने बम फोड़ा। क्या? किससे? उसकी माँ तो गोया शौक में ही चली गई। मुझे अच्छी लगी तो मैंने शादी कर ली, मेरी एम्प्लॉय थी। वो ऐसे बोला जैसे कोई ड्रामे का सीन बता रहा हो। माँ का जज्बाती प्रोग्राम शुरू हो गया। फिर उसने अपनी बहू को देखने की ख्वाहिश जाहिर की। उसने ये कहकर टाल दिया कि वो सो रही है, जबकि वो उसके पीछे खड़ी मनपसंद शादी का सुनकर साकत हो गई। सर, आप खाना खाएंगे? अब साथ रहना था तो इतनी बातचीत तो हो ही सकती थी। उसकी आवाज पे वो बैठे बैठे उसकी तरफ घूमा। आंखों में आज नरमी थी, शायद अभी अभी माँ से बात की थी। जबकि हुरैन को रोना आ गया। उसकी भी तो माँ थी, क्या वो उसे याद नहीं करती? मैंने देखा सालन बना हुआ था मगर चपाती नहीं थी, इसलिए मैंने नूडल्स खा लिए, वो कहकर मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करने लगा। जब वो कुछ कहे बगैर किचन में चली गई। उसने नजर उठाकर देखा, फिर कुछ सोचा और उसके पीछे चला आया। जो आटा उसने दोपहर में गूंद लिया था उसी के 3 पेड़े किए। वो आकर शेल्फ के साथ टेक लगाकर उसे देखने लगा। दुपट्टे के हाले में उसका खूबसूरत चेहरा दमक रहा था, जैसे अभी वो नमाज पढ़कर आई हो। 2 लिटें मुंह पर आ रही थीं, जिन्हें वो बार बार सर हिलाकर पीछे कर रही थी। उसकी झुकी हुई आंखें, नाक और नाक में पहनी हुई नोज रिंग। इनफाल लम्हे भर के लिए रुक गया। वो सर झुकाए अपना काम कर रही थी और जरा उस जानिब नहीं देख रही थी। तवे पर एक चपाती डाली, तब तक दूसरी बेलने लगी। उसके सुर्ख हुए गाल देखकर इनफाल की नजर उसके होंठों पर जा पहुंची। हल्के गुलाबी होंठ जो आपस में जुड़े हुए थे, बाल उसके लबों को छू रहे थे। जिसे पीछे करने के लिए उसने सर हिलाया, मगर फिर से वो लिटें आगे आ गई। उसने दोबारा सर हिलाया और इनफाल कुछ देर देखता रहा। फिर हाथ बढ़ाकर उसके बाल कान के पीछे किए तो हुरैन ने करंट खाकर पीछे होते उसे देखा। धड़कने जो उसके इतने करीब खड़े होने पे पहले ही मामूल पर नहीं थी। अभी तो लगा दिल पसलियों को तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसकी आंखों में उस वक्त कोई जज्बा नहीं था, न मोहब्बत न नफरत। वो बस शायद उसकी मदद करना चाहता था। जल्दी जल्दी चपाती उतारी और दूसरी डाली। रुखसार उसकी निगाहों और कुर्बत से मजीद गुलाबी हो गए थे। इनफाल वजह न जान सका। क्या चूल्हे की इतनी तपश थी कि उसके रुखसार इतने सुर्ख हो गए? उसने टेबल पर खाना लगाया।
इनफाल ने एक चपाती अपनी प्लेट में निकाली और दूसरी में थोड़ा सा सालन निकाल लिया। पहला नवाला मुंह में रखते हुए उसने बेसाख्ता हुरैन की जानिब देखा, जो अपने लिए चपाती निकाल रही थी। उसे कितने अरसे से घर का ऐसा खाना नसीब नहीं हुआ था। पतली गोल सी चपातियों का जायका वही महसूस कर गया। खाना खाकर वो सोने लगा जब उसे मैसेज आया था कि मोहतरमा वालिदा माजिदा साहिबा कल ही पाकिस्तान अपनी बहू के दीदार को हाजिर होंगी। सोने से पहले वो उसके कमरे में आया था। वो दुपट्टा उतार कर तकिए के पास रख रही थी। उसे अंदर दाखिल होते देखकर वो न समझी से उसे देखने लगी। आई एम सॉरी सर, मुझे आपसे पूछे बगैर आपके किचन में नहीं जाना चाहिए था, मगर मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैं गई। मैं आपको पैसे दे दूंगी। वो जो दोपहर से जवाब याद कर रही थी उसे देखकर रट्टू तोते की तरह बोली, जिस पर इनफाल ने आंख उचकाई। ठीक है, मुझे तुम्हारे खाने से कोई मसला नहीं है, और अगर इतने ज्यादा पैसे आ गए हैं तो कहीं और लगा, मुझे जरूरत नहीं है। कहकर वो जो बात करने आया था सोचने लगा, जैसे कहे या ना कहे। सर, आपको कुछ कहना है? उसे वैसे ही खड़ा देखकर वो बोली, जी, कल रात को मेरी माँ आ रही है। दोनों हाथ ट्राउजर की जेबों में डाले वो थोड़ी परेशानी से बोला। हुरैन को लगा कि वो उससे कहेगा कि वो कल ही किसी हॉस्टल में शिफ्ट हो जाए। ओके सर, मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी। साफ जाहिर था उसने आंखों के आंसू रोक रखे थे। उसके चेहरे से लग रहा था कि अभी तो रो ही देगी, जिस पर इनफाल ने मुंह बनाया जैसे उसकी अकल पर मातम कर रहा हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इतनी अकल कम है। पहले बात सुन लो, मैं कह रहा हूं कि कल से तुम मेरे कमरे में शिफ्ट हो रही हो। मैं नहीं चाहता कि माँ को लगे कि हम अलग रह रहे हैं। वो 1 महीने बाद वापस चली जाएंगी, सो फिर वापस रूटीन पर आ जाना। और हाँ, मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बता दिया था, इसीलिए वो तुमसे ही मिलने के लिए खास तौर पर आ रही हैं, और हमारे दरमियान सब कुछ ठीक है। ये बात उन्हें भी फील हो। वो काफी अरसे से मेरे पीछे पड़ी थी शादी को लेकर। मैं शादी कर लूं, मगर मुझे शादी करनी ही नहीं थी। अब हो गई है तो कुछ कर नहीं सकता, तो इसलिए अब उनके सामने खुद को बचाने के लिए मैंने बता दिया है कि मेरी शादी हो गई है और पसंद की हुई है। तो इसीलिए हम दोनों के दरमियान ऐसा ही दिखना चाहिए कि जैसे हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तुम समझ रही हो ना? और तुम्हें इस बात पर कोई एतराज तो नहीं है ना? इनफाल ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। दिल तो उसको चाहा था कि उसके मुंह पर कह दे, जो फैसला कर चुके हो तो उसके एतराज से क्या फर्क पड़ेगा, मगर कुछ कहकर वो अपनी शामत को आवाज नहीं देना चाहती थी। अगले दिन सुबह जब इनफाल ऑफिस चला गया तो उसने सारे घर को संवारने का सोचा, मगर इतने बड़े घर को वो अकेले कैसे हैंडल करेगी, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। सबसे पहले उसने किचन और लाउंज को समेटना शुरू किया, और उसी में उसे दोपहर हो चुकी थी। फिर बारी बारी सब कमरों को जाकर समेटने लगी, और जिस कमरे में खंसा बेगम ने रहना था उसको उसने खास तौर पर साफ किया, और अब बारी थी इनफाल के कमरे की। वो जब उसके कमरे में आए तो उसका हशर देखकर एक पल के लिए उसका सर घूम गया। सबसे बुरा हाल तो उसी कमरे का था। उसने सबसे पहले सब कुछ समेटकर बेडशीट चेंज की, और फिर वार्डरोब में सब कपड़े सेट करके अपने कपड़ों को उसमें रखा। वो खाना बनाने के लिए किचन में चले गए। इत्मीनान से पुलाव और सवैयां बनाई और फिर फ्रेश होने के लिए कमरे में चली गई। वो जब फ्रेश होकर बाहर आए तो लाउंज से बोलने की आवाजें आ रही थी। वो झिझकती हुई अंदर दाखिल हुई तो अंदर एक सोबर सी खातून सोफे पर बैठी हुई थी। उसने अंदर जाकर जैसे सलाम किया तो वो चौंक उठी और फिर मुस्कुराते उठकर उसका माथा चूमा। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारी है मेरी बेटी, वो खातून बोली तो इनफाल ने उसे एक नज़र देखा और पहली बार गौर से देखा। वो वाकई बहुत हसीन थी, और उस वक्त वो ब्लैक कलर की फ्रॉक में शानों पर दुपट्टा फैलाए, सर पर टॉवल बांधे सादे से हुलिये में भी हसीन तरीन लग रही थी। मैं खाना लगाती हूँ, वो इनफाल की खुद पर नजर महसूस करके घबरा कर बोली। अरे नहीं बेटा, अभी मेरे पास तुम बैठो, मुझसे बातें करो, फिर हम खाना खाते हैं, खंसा बेगम ने शफकत भरे लहजे में कहा, और फिर उसे लेकर सोफे पर बैठकर उसे छोटे छोटे सवाल करने लगी। अच्छा मुझे ये तो बताओ, तुम्हारी फैमिली में कौन लोग हैं, ताकि मैं वलीमे पे अपने मेहमानों का हिसाब वगैरह लगा सकूं। अचानक से खंसा बेगम ने कहा तो वो चौंक कर इनफाल की जानिब देखने लगी, जो खुद शॉक्ड सा उन्हें देख रहा था। मॉम, वलीमे की क्या जरूरत है, ये सिर्फ एक रस्म ही तो है, जरूरी थोड़ी है ये। आपने ख्वाहिश की कि मैं शादी कर लूं, मैंने कर ली, और मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरी जाती जिंदगी के बारे में पता चले। मैं अपनी लाइफ को बहुत पर्सनल रखता हूँ। वो जल्दी से बोला तो खंसा बेगम ने उसे घूर कर देखा। ऐसा हरगिज नहीं होगा, ये वलीमा तो हर सूरत में होगा। अरे मेरे भी कोई अरमान है, तुमने शादी कर ली, खुद ही मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो मुझे ये वलीमा करवाने से नहीं रोकोगे, समझ आई तुम्हें? खंसा बेगम ने हतबी लहजे में कहा तो वो बेबसी से अपना माथा थाम गया।
ये बहुत ही गलत बात है। अब आप मुझे इस तरह ब्लैकमेल करेंगी मॉम? और वैसे भी हुरैन की फैमिली में कोई भी नहीं है, सब लोगों ने इसे रिश्ता तोड़ लिया है मुझसे शादी करने की वजह से। वो निगाहें चुराकर बोला तो खंसा बेगम ने बेयकीनी से अपने लाडले को देखा। ये क्या बात कर रहे हो? तुम लोगों ने हुरैन के वालिदैन की इजाजत के बगैर शादी की? ऐसा कैसे कर सकते हो? वो चिल्लाकर बोली तो वो झंझला सा गया। प्लीज मॉम, मुझसे किसी किस्म का सवाल मत कीजिए और मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खाने चलते हैं। वो एकदम से उठते हुए बोला तो खंसा बेगम उसे देख कर रह गई। फिर उन लोगों ने चुपचाप खाना खाया, मगर खंसा बेगम बिल्कुल चुप हो गई थी। उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी थी कि उनके बेटे ने किसी लड़की को भगाकर शादी की। कुछ देर के बाद वो उठकर कमरे में चला गया और हुरैन उसकी कॉफी बनाकर कमरे में लेकर आई तो वो सिगरेट को लबों से लगाए सोफे की बैक से टेक लगाए नीम दराज बैठा था। आपकी कॉफी? उसने पास जाकर मध्यम से लहजे में कहा तो वो चौंक कर सीधा हुआ और उसने अपनी सिगरेट को एस्ट्रे में मसला और उसके हाथ से कॉफी पकड़कर अपने लबों से लगा ली। व्हाट द हेल गर्ल, ये कॉफी में चीनी कौन यूज करता है? वो तब कर बोला, मैं पीती हूँ, मुझे कॉफी बहुत कड़वी लगती है। जब तक मैं इसके अंदर चीनी न डालूं मुझे अच्छा नहीं लगता। वो सर झुकाए बोली, ओ गॉड, तुम्हें पता है एक मीठे के इस्तेमाल से हमारी लाइफ कितनी ज्यादा मुश्किल हो जाती है और ये जिस्म बेजान होने लगता है। चीनी एक जहर है और मैं तो कभी भी यूज नहीं करता और कॉफी में कभी भी यूज नहीं करता, क्योंकि कॉफी तो आप स्लिम और स्मार्ट रहने के लिए यूज करती होंगी ना। वो बोलता चला गया और वो हैरानगी से उसे देख रही थी, जो कि पहली बार उससे ऐसी इतनी लंबी बात कर रहा था। मैं स्लिम और स्मार्ट होने के लिए यूज नहीं करती, मैं ऑलरेडी स्लिम और स्मार्ट हूँ। बस मेरा दिल चाहता है कि मैं कॉफी पीऊं तो मैं यूज करती हूँ और मुझे मीठे के बगैर कॉफी और चाय अच्छी नहीं लगती। वो बोली तो इनफाल ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। तुम्हारा सच में ऊपर का खाना खाली है? वो तंज़े लहजे में बोला तो हुरैन के बर्दाश्त भी जवाब दे गई थी। आप होते कौन है मुझे ये सब बोलने वाले? आप अपने काम से काम रखा करें, ज्यादा मेरे मामलात में कमेंट्स पास मत करें। वो गुस्से से बोली। पलटने लगी तो पांव कारपेट में उलझा और वो सीधी उसके ऊपर गिरे। दोनों की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। वो जल्दी से हड़बड़ाकर उस पर से उठने लगी, मगर उसका हाथ उसकी कमर के गिर्द लिपटा था। वो दोबारा से उसके ऊपर गिरी और अब की बार उसके लब हल्के से उसके लबों से मस हुए तो जैसे पूरे बदन में करंट सा दौड़ गया था। वो तड़प कर फिर से उठने लगी, मगर इनफाल की गरिश मजीद कमर के गिर्द मजबूत हो चुकी थी और वो दिलचस्पी से उसकी तरफ देख रहा था, जिसका हसीन चेहरा शर्म और खफत से सुर्ख हो चुका था। फिर इनफाल का हाथ उसकी कमर से होता हुआ उसकी गर्दन के पास आकर रुका। उसने उसकी गर्दन पे हाथ रखा, चेहरा पास करते उसके माथे पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ा तो वो साकत से फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगी। फिर हड़बड़ाकर जल्दी से उठकर खड़ी होती, अपना तनफ्फुस बहाल करके खूनख्वार निगाहों से उसे देखने लगी, जो कि अपनी मुस्कुराहट जब्त कर रहा था। शर्म नहीं आती आपको? कैसे कर सकते हैं आप ये? वो तब कर बोली तो वो उठकर उसके मुकाबिल आया और उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ कर गया। मैंने अपनी जिंदगी में किसी औरत को छुआ नहीं है, लेकिन तुम पहली हो जिसको मैंने किस किया है और न जाने मेरे अंदर ये ख्वाहिश कैसे जन्म लेने लगी कि मैं तुम्हें छूकर महसूस करूं। फिक्र मत करो, तो मैं उसकी कीमत अदा कर दूंगा। जितने दिन तुम यहाँ पर हो मैं इतने दिन अपने दिल को तस्कीन देना चाहता हूँ तुम्हारे वजूद से, और उसके बदले तुम जितनी रकम कहोगी दूंगा। वो बोल नहीं रहा था बल्कि जहर उगल रहा था और हुरैन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसका हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ इनफाल के चेहरे पर पड़ा। मैं आपको बहुत माकूल इंसान समझती थी। मुझे लगा था कि आप एक अच्छे आदमी हैं जिन्होंने मेरी एक घटिया इंसान से हिफाजत की और फिर मुझे अपना नाम तक दे दिया, अपने घर में रखा। मगर नहीं, आप सब मर्द एक जैसे होते हैं, हवस के पुजारी। मैं कोई कोठे पर बैठने वाली तवाइफ नहीं हूँ और जो कि मेरे साथ सौदेबाजी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने घर इतने दिन रखा, लेकिन अब मैं आपके घर एक मिनट के लिए नहीं रहूंगी और न इस कमरे में। वो कहती हुई बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगी तो वो उसके बाजू से खींचता दीवार से लगा गया। मैंने कोई गलत बात नहीं की, शौहर हूं तुम्हारा। बीवी के जिस्म की तलब करना कोई गलत बात नहीं होती एक शौहर के लिए। और तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैंने तुम पर एहसान किए हैं, इसके बदले ही ये सब कर लो। वो तेज लहजे में बोला और उसके हाथों की गिरफ्त उसके बाजू पर सख्त होती चली गई। हुरैन की आंखों में आंसू आ गए थे। छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है। वो सिसकी और साथ ही आंसू लड़क कर उसके रुखसार पे बह गए। जाओ, जाकर आराम करो। एकदम गिरफ्त ढीली हुई। वो उससे निगाहें चुराकर बोला और फिर अपने मेज से सिगरेट और लाइटर उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। वो बेड पर बैठी हिचकियों से रोने लगी। फिर वो कुछ देर के बाद मुंह हाथ धोकर सोने के लिए लेट गई।
मगर नींद कहाँ आ रही थी। पूरी रात वो उसके अल्फाज की काट अपने दिल पर महसूस करती रही थी। सुबह तहज्जुद के बाद जाकर कहीं आंख लगी थी। वो पूरी रात टेरेस पर गुजार कर जब तहज्जुद के जाने होने पर नीचे उतर कर आया तो निगाह बेख्तियार बेड पर गई जहां वो सो रही थी। वो बेख्तियार चलता उसके पास आकर बैठ गया और उसके चेहरे को बगौर देखने लगा। पलकों पर अटके हुए आंसू अब भी पता बता रहे थे कि वो रोते हुए सोई है। दिल में जिससे मलाल सा होने लगा। फिर बेख्तियार झुका और नरमी से अपने लब उसके माथे पर रखे और दूसरी तरफ मुंह करके सोने की कोशिश करने लगा। मगर नींद कहाँ आ रही थी। दिल तो उस दुश्मन जान की तलब में बेकरार था। फिर वो खुद से लड़ते लड़ते कब सोया उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह जब आंख खुली तो वो हनूज अभी तक सो रही थी। वो अपनी आंखें मसलता उठकर फ्रेश होने चला गया। वो आधे घंटे के बाद जब दोबारा आया तो वो अभी तक सो रही थी। पास आकर उसके माथे को जैसे ही छुआ तो वो बुखार से तप रहा था। वो बेचैन होता उसके पास बैठता, उसके रुखसार को छूने लगा। हूर, क्या हुआ? आंखें खोलो। वो उसे बाहों में भरकर उसके रुखसार को थपथपाकर बोला, मगर वो टस से मस ना हुई तो उसके चेहरे पर जैसे परेशानी भरे तासुरात उभर आए। वो जल्दी से उसके तकिए पर सीधा करता तेजी से बाहर निकला और सीधा खंसा बेगम के रूम में आया। मामा प्लीज आप मेरे साथ चलिए। वो पता नहीं हुरैन को क्या हो गया है, होश ही नहीं कर रही। वो बेकरारी से बोला तो खंसा बेगम साड़ी का पल्लू दुरुस्त करती हुई बाहर की जाने बढ़ी और आकर जब देखा तो वो बुखार से तप रही थी। ये सब क्या है अनफाल? इसे इतना तेज बुखार है और तुम्हें पता भी नहीं है। खंसा बेगम ने गुस्से से कहा तो वो लब कुचलते सर झुका गया। फोन करो डॉक्टर को। खंसा बेगम ने कहा तो वो जल्दी से डॉक्टर को फोन मिलाने लगा। कुछ देर में डॉक्टर ने आकर चेकअप के बाद उसे ताज़े पानी की पट्टियां रखने को कहा। खंसा बेगम उसके सरहाने बैठी उसके सर पे पट्टियां रख रही थी और कुछ ही देर में वो गनूदगी में अपनी माँ को पुकारने लगी। खंसा बेगम तशवीश भरे अंदाज में उसे देख रही थी और इनफाल लब भींचे खड़ा था। फिर कहीं 2 घंटों के बाद जाकर उसे थोड़ा सा होश आया था। खंसा बेगम उसे जबरदस्ती खाना खिलाया और फिर मेडिसिन दी। अरे बेटा, तुमने कल इतना ज्यादा काम किया, मुझे लगता है इसी वजह से बुखार चढ़ गया। तुम्हें आधा से बिल्कुल भी काम करने की जरूरत नहीं है और घर में मुलाजमा अब से आएगी। जब मैं यहाँ पर हूं ना, मुलाजमा फिर आएगी। और ये इनफाल को इतनी बार कहा है कि मुलाजमा को काम तो करने दिया करो, मगर ये किसी पर ट्रस्ट ही नहीं करता, इसीलिए इतना गंदा पड़ा होता है। और मैं सफाई देकर कल रात ही समझ रही थी कि तुमने ही सब कुछ संवारा होगा और इसको चाहिए था ना कि अब तो तुम यहाँ पर हो तो मुलाजमा का इंतजाम करता, मगर पता नहीं इसे समझ क्यों नहीं आती। खंसा बेगम ने बारी बारी दोनों की क्लास ली थी। सॉरी मामा, बस मेरे ध्यान में नहीं रहा। वो आहिस्तगी से सर झुकाकर बोला तो खंसा बेगम ने उसे खोजती निगाहों से देखा। अच्छा मैं चलता हूँ, उसकी तबीयत पहले से काफी बेहतर है। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं फोन करूंगा। वो कहता हुआ लैपटॉप बैग उठाकर बाहर निकल गया। दफ्तर पहुंचकर भी उसका ध्यान घर की तरफ ही लगा था। कितनी बार वो फोन करके खंसा बेगम से उसका हाल दरियाफ्त कर चुका था। दोबारा फिर से कॉल आई तो खंसा बेगम चिढ़ सी गई। तुम खुद उसके मोबाइल पे फोन करके पूछ क्यों नहीं लेती? वो बोली तो वो लब भींच कर रह गया। अब वो नहीं क्या बताता कि जिस दिन वो किडनैप हुई थी मोबाइल तो उसी दिन वहीं उसी घर में रह गया था और उसने नया मोबाइल भी लेकर नहीं दिया। वो झंझलाकर फोन बंद कर गया। फिर शाम को जब घर पहुंचा तो खंसा बेगम लाउंज में बैठी थी। वो सलाम करता हो उनके पास बैठ गया। तुमने बताया क्यों नहीं कि उसके पास मोबाइल नहीं है? अभी मुझे कुछ देर पहले पता चला कि उसके पास मोबाइल नहीं है। तो मुझे सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? तुम्हारी माँ हूं मैं, इसलिए जो भी है मुझे सच सच बता दो। ये ना हो कि मुझे कहीं और से सच पता चले और मामला बिगड़ जाए। तुम दोनों के बीच मुझे मियाँ बीवी वाली कोई बात नजर ही नहीं आ रही। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है, तुम्हारे चेहरे पर उदासी के तासुरात हैं। खंसा बेगम ने एकदम से सवालों की बौछार कर दी थी। वो गहरा सांस भरकर रह गया। फिर मुख्तसर उसने सब बात बताई तो वो सदमे भरे अंदाज में उसे देखने लगी। सच में मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है किसी फिल्म ड्रामे की स्टोरी सुना रहे हो। खैर जो भी हुआ, उन डाकुओं का बहुत शुक्रिया जिन्होंने तुम्हारी शादी कर दी, वरना तुमने कहाँ शादी के लिए मानना था। हंसा बेगम ने खुश होती हुई कहा तो वो चिढ़ सा गया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। हम दोनों का मिजाज बहुत मुख्तलिफ है। मैंने बस उसे अपने साथ इसीलिए रखा हुआ था कि आप मुझ पर शादी का प्रेशर न डालें। और मैं आपको एक बात अब वाज़िया कर दूं, मैं ये शादी जैसी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, मेरे अंदर इतना स्टैमिना नहीं है। वो बोला तो खंसा बेगम ने उसे सदमे से देखा। मतलब उसे छोड़ना चाहते हो? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब ये बात आपको पता चल चुकी है तो इसीलिए मशवरा यही है कि आप वलीमे का सोचिएगा भी मत। वो संजीदगी से बोला और उन्हें यूं ही साकत जामत छोड़कर अपने कमरे में आ गया।
जब वो कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ तो सामने का मंजर उसके कदम जकड़ गया। आईने के सामने खड़ी अपने गीले बालों को सुलझाते हुरैन वाकई किसी होर जैसी लग रही थी। सी ग्रीन कलर के घुटनों से नीचे आती फ्रॉक में उसकी गोरी रंगत दमक रही थी। वो बेख्तियार चलता उसके पास आया तो वह चौंक कर पलटी और उसे देखकर हड़बड़ाकर अपना दुपट्टा तलाशने लगी। मैंने मामा को सब कुछ बता दिया है, अब हमें ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना सामान समेट कर वापस गेस्ट रूम में जा सकती हो। वो स्पॉट लहजे में बोला तो बिना कुछ बोले अपनी चीजें उठाकर कमरे से निकल गई। वो लाउंज में आई तो खंसा बेगम सर थामे बैठी हुई थी। किधर जा रही हो बेटा? उन्होंने बेकरारी से पूछा। वो सर बोल रही हैं कि उन्होंने आपको हमारे रिश्ते के बारे में सब सच बता दिया है, तो मुझे वापस गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो वहीं जा रही हूँ फिलहाल, और मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। वो आहिस्ता से बोली। नहीं बेटा, तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारे घर वालों ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, तुम इस तरह मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकती। हंसा बेगम ने कहा तो वो अफसरदा से मुस्कुरा दी। आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने साथ कुछ न कुछ कर ही लूंगी। वैसे भी जब मेरे घर वालों को फिक्र नहीं थी तो आप मेरे मुतालिक परेशान क्यों हो रही हैं? बस मुझे इसी बात का दुख है कि मेरी माँ वहाँ सबके ताने सह रही होगी और मैं कुछ कर भी नहीं सकती। मेरे वालिद साहब जब मैं पैदा हुई थी तभी फौत हो गए थे। जिंदगी भर मुझे मनहूस करार दिया गया। मेरी माँ की शादी मेरे चाचू से हो गई, उनसे उनकी औलाद भी है, मगर उनमें से कोई भी मेरा बहन भाई नहीं बना, क्योंकि वो मुझे मानते ही नहीं है। अपना बहन भाई एक वाहद माँ थी जिसे फिक्र होती थी, मगर उस दिन वो भी कुछ नहीं कर पाए, और मुझे उनमें से किसी से कोई शिकवा नहीं है, और ना ही सर से। बोलते बोलते उसकी आवाज भीग गई थी। फिर वो चुपचाप वहां से पलट गई और खंसा बेगम ने शिकवा की निगाहों से सामने सीढ़ियों पर खड़े अपने बेटे को देखा तो वो निगाहें चुरा गया। इनफाल को न जाने उसका दर्द अपने सीने में चुभता हुआ महसूस क्यों हो रहा था। वो पूरी रात एक पल के लिए नहीं सो पाया था। अगले दिन वो सुबह ऑफिस के लिए निकल गया और जब शाम को घर आया तो उसकी निगाहें हुरैन को ही तलाश कर रही थी। मामा, वो हुरैन कहाँ है? बिलाखिर उसने पूछ ही लिया जब उसे खाने की टेबल पे मौजूद न पाया। चली गई वो यहाँ से, और किस रिश्ते से वो यहाँ रहती जब उसका शौहर इसे कबूल नहीं करना चाहता? खंसा बेगम ने इत्मीनान से कहा तो वो तड़प सा उठा। व्हाट? कहाँ गई है वो? और उसके तो घर वाले भी उसे कबूल नहीं करना चाहते थे। वो अकेली कहाँ जाएगी? वो बेकरारी से बोला। मुझे कौन सा बता कर गई है? जाने से पहले सिर्फ सलाम लेने आई थी, और ना मैंने पूछा और ना उसने मुझे बताया। जब उसके शौहर को उससे कोई रिश्ता ही नहीं रखना था तो मुझे उससे सवाल करने का भी हक नहीं था। मेरी तरफ से जहां मर्जी जाए। खंसा बेगम मुतमईन लहजे में बोली तो वो खाने से हाथ खींचता उठ खड़ा हुआ। अरे खाना तो खा लो, इतनी मेहनत से बनाया मैंने। खंसा बेगम ने कहा। भूख नहीं है मुझे, वो गुस्से से बोला और लंबे लंबे डग भरता हुआ अपने कमरे की जाने बढ़ गया। पीछे मौजूद खंसा बेगम पुरस्कार अंदाज में मुस्कुरा दी। वो कमरे में आकर अपने बाल मुट्ठी में जकड़े इधर से उधर टहल रहा था। उसका दिमाग स्थित इसी बात पर अटका हुआ था कि वो न जाने कहाँ भटक रही होगी। फिर वो कीज उठाकर बाहर निकला और करीब के जितने हॉस्टल थे सब में जाकर उसके बारे में पूछा, मगर उसका कहीं अता पता नहीं था। वो आधी रात को घर आया तो खंसा बेगम उसके इंतजार में लाउंज में बैठे बैठे सो रही थी। वो जैसे अंदर आया तो तेजी से उसकी जानिब लपकी। कहाँ चले गए थे तुम? कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। टाइम देखा है तुमने? रात के 4 बज रहे हैं। वो गुस्से से बोली तो इनफाल बिना कुछ जवाब दिए थके थके कदमों से अपने कमरे की जाने बढ़ गया। अगला दिन भी उसने उसे तलाश करने में गुजारा था। रात को देर से घर पहुंचा। फिर तो खंसा बेगम ने उसे काफी ज्यादा डांटा, मगर वहां असर किसको था? हुरैन को गए 1 हफ्ता हो चुका था, मगर इनफाल को तो जैसे अपना आप ही भूल गया था। बड़ी हुई शेव और सुर्ख आंखें उसके रत जगहों की गवाह थी। आज भी वो काफी लेट घर पहुंचा तो लाउंज में सर पकड़े बैठे हंसा बेगम को देखकर दिल ही दिल में शर्मिंदगी हुई, मगर वो आज कुछ बोली नहीं थी। वो खुद चलकर उनके पास आया और उनकी गोद में सर रख दिया। मेरा सुकून खो गया है अम्मा, ऐसा लग रहा है मेरी जिंदगी है बेमकसद, कहीं मेरा दिल नहीं लगता। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? हर दिन मुझे यही धड़का लगा रहता है कि वो कहीं मुसीबत में तो नहीं है। मैं थक गया हूँ माँ, उसे ढूंढ ढूंढ कर। मुझे अपनी सांस सीने में जकड़ते हुए महसूस होती है। ऐसा लगता है कोई मुझे ही अंदर खाए जा रहा है। नहीं रह सकता मैं उसके बगैर मम्मा, प्लीज दुआ कीजिए वो मुझे मिल जाए। वो तड़प कर बोलता रो पड़ा था। हंसा बेगम के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट थी और उनका हाथ उसके सर पे आ ठहरा। वो किसी मुसीबत में नहीं है बेटा, वो अपने घर जा चुकी है और मैंने खुद उसे वहां छोड़ा है।
हंसा बेगम की बात पर उसने एक झटके से सर उठाकर बेयकीनी से उन्हें देखा। आप सच कह रही हैं? वो उनके हाथ थामकर बेचैनी से बोला। बिल्कुल। और हाँ, वो तुमसे अभी तक नाराज ही है। उसे मनाना तुम्हारा काम है। ये जो मोहब्बत है ना, इसका इजहार उसके सामने जाकर करना। वो उसके सर के बालों को बखेरते हुए बोली। लेकिन मम्मा, वो लोग तो उसे रखने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ? उसने पूछा। दरअसल मेरा बीपी हाई हो गया था जब तुम उस दिन ऑफिस के लिए निकले, और मेरी तबीयत खराब देखकर वो मुझे ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल ले गई। और वहां से हम निकल ही रहे थे तो पता चला कि उसके चचा, जो कि उसके वालिद भी हैं, अब उन्हें हार्ट अटैक आया था। और डॉक्टर्स वहां पे सही तरह से ट्रीट नहीं कर रहे थे। पैसों की काफी ज्यादा डिमांड थी। और मैंने जब वहां पर बात की तो फौरी डॉक्टर ने उन्हें हाथों हाथ लिया। बस फिर वहीं पर उसकी मदर से बात हुई और मैंने उनको सब कुछ बताया। वो तो पहले ही बहुत उसको याद कर करके रो रही थी। उन्होंने बगैर कुछ कहे से अपने गले लगा लिया। सारे शिकवे माँ बेटी के धुल गए। और चाचा को जब होश आया, अगले दिन उनको उस बात का पता चला तो उन्होंने भी माफी मांगी। और उसके बहन भाई भी सब उसके साथ रवैया ठीक कर चुके हैं। मगर उसकी फुफ्फो, फुफियाँ और छोटे चाचा कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। मगर मैंने उन्हें कह दिया है कि ये मेरे बेटे की अमानत है, बहुत जल्द लेने आऊंगी। मैंने उससे पूछा कि मैं कब रिश्ता लेकर आऊं अपने बेटे का। वो कहती है, आपके खड़ूस बेटे से कोई शादी वादी नहीं करेगी, अब तुम्हें ही उससे मनाना होगा, फिर ही मैं रिश्ता लेकर जाऊंगी। हंसा बेगम इत्मीनान से सब बताती चली गई और वो सदमे से अपनी माँ को देख रहा था, जो पिछले 7 दिन से अपने बेटे को तड़पता हुआ देख रही थी। कितनी जालिम माँ है यार, आपका बेटा इतने दिनों से तड़प रहा था और आपने मुझे बताया तक नहीं। पता है मेरी हालत क्या हो गई थी? वो मुंह बसोर कर बोला। कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो तुम पर बिल्कुल ठीक मुहावरा बैठता है। अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुमने तो चुपचाप अपने जज्बात को अपने अंदर छुपा कर बैठ जाना था। इसीलिए मैंने कहा कि अच्छा, तुम ही तड़पाती हो ताकि तुम्हारा जज्बात एक दिन बाहर निकल दिया है। और देखो, तुमने फाइनली इजहार मोहब्बत कर ही दिया। बेटा जी, मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ माँ ही होती है। हंसा बेगम ने हंसते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दिया। मैं आता हूँ। वो उठकर खड़ा होता दोबारा मेन दरवाजे की तरफ बढ़ा तो हंसा बेगम ने उसे पुकारा। अरे जा कहाँ रहे हो? आपकी बहू से मिलने जा रहा हूँ। जब तक उसे देखूंगा नहीं मुझे चैन नहीं आएगा। वो दूर से हाथ लगाते हुए बोला और फिर तेजी से बाहर के जाने बढ़ गया। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी उस दुश्मन जान के घर की तरफ रवाना थी। उनकी कॉलोनी में पहुंचकर जाकर गाड़ी उसके सामने घर के खड़ी की। ये एक लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी थी तो गार्ड कहीं आगे गया था। उसने एक छोटे से गेट को देखा और फिर सामने मौजूद टेरेस पर उसकी निगाह गई। वो गाड़ी को दीवार के पास लगाता, पाय पकड़कर दीवार पर चढ़ा और फिर छलांग लगाकर टेरेस के विंडो को हाथ डालता वह मुश्किल ऊपर पहुंचा। तो कमरे में मदम से रोशनी थी और वो धीमा कदमों से चलता हुआ बेड के पास आया तो बेड पर लेटी हुरैन को देखकर दिल खुशी से नाचने लगा। वो मुस्कुराता उसके पास बैठा और उसकी चुटिया को थाम कर लबों से लगाया और फिर उसके रुखसार को चूमते हुए लिट आहिस्ता से पीछे हटाई और अपने लब उसके माथे पर रखे। तो वो हड़बड़ा कर उठी और उससे पहले कि वो चीख मारती तो जल्दी से उसके लबों पर अपना हाथ रख गया। क्या हो गया? मैं हूं इनफाल, उसके कान के पास बोला तो हुरैन ने उसे जोर से पीछे धकेल दिया। जल्दी से लैंप ऑन किया और उसे अपने कमरे में देखकर उसकी आंखें जैसे फटी की फटी रह गई थी। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? और कैसे आए आप मेरे कमरे में? वो सटपटा कर बोली। टेरेस से। वो इत्मीनान से बोलता उसके रुखसारों पर लब रखने लगा तो वो उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसकी पेश रफ्त रुक गई। वेरी बैड मिसेज इनफाल चौधरी, शौहर को पीछे नहीं धकेलती, वो गंभीर लहजे में कहता। उसके रुखसार पर झुका और एक शिद्दत भरा लम्स छोड़ा तो वो घबरा के जोर से आंखें मीच गई। फिर वो उसके चेहरे के हर नक्श पर अपना लब रखना चला गया। वो उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे कांप रही थी। फिर इनफाल ने उसे आहिस्ता से अपने बाहों के हसार में लिया तो वो हल्की सी मुजाहमत करते उसे पीछे धकेलने लगी, मगर इनफाल की गिरफ्त काफी सख्त थी। फिर अचानक से हुरैन की निगाह सामने दीवार पर पड़ी और उसकी एक दिल खराश चीख गूंजी। कि क्या हुआ? वो हड़बड़ा कर बोला। वो बोलना चाह रही थी मगर उसके मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे और चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। व्हाट? तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो जैसे भूत देख लिया हो? वो मुड़कर इधर उधर देखने लगा मगर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। मम्मी, काकरोच, वो चिल्लाई तो वो भी सटपटाकर सीधा हो गया, उसके साथ लिपट गया। कहाँ है? वो थूक निगलते हुए बोला तो हुरैन ने सामने दीवार की तरफ इशारा किया। ओ, ये हमारी तरफ तो नहीं आएगा ना? वो थूक निगलते बोला और तभी हुरैन इसके अंदाज पर चौंक गई। वो काकरोच से डर रहा था। मजाक करिए ना आप?
जानबूझ कर उसकी तरह मुझसे लिपटने की कोशिश कर रहे हैं ना? वो उसे पीछे धकेलते गुस्से से बोली। व्हाट? पागल लड़की, मुझे सच में इस काकरोच से डर लगता है, प्लीज इसे भिगाओ यहाँ से। वो झंझलाता हुआ बोला तो हुरैन की आंखें बेयकीनी से फैल गई। आर यू सीरियस? आप काकरोच से डरते हैं? द ग्रेट इनफाल चौधरी और काकरोच से डरते? मर्द होकर डरते? वो सदमे से बोली। हाँ तो मर्द इंसान नहीं होते क्या? और डर लगता है तो बस लगता है। वो जल्दी से बोला। आप पे तो फर्ज बनता है कि आप अपनी बीवी को बचाने के लिए उस काकरोच से भिड़ जा, मगर आप तो यहाँ मेरे पीछे छुपे खड़े हैं। छी 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 छी। वो उसे पीछे धकेलती हुए बोली और इस्तेसना में वो उसे लेता बेड पे गिरा। कुछ पल खामोशी से बीत गए थे। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देखते रहे। हूर बेटा, क्या हुआ है? तुम चीखें क्यों मारी थी? दरवाजा खटखटाया और साथ ही उसकी माँ की आवाज आई तो वो उसे जल्दी से पीछे हटाती हड़बड़ाकर कभी कॉकरोच को देख रही थी और कभी दरवाजे की जानिब। जाइए यहाँ से, वो दबे दबे अंदाज में बोली तो इनफाल ने खिड़की के पास मौजूद उस कॉकरोच को देखा। मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? कॉकरोच है वहां। वो जल्दी से बोला तो हुरैन झंझला सी गई। उसको शी करके वहां से हटा दो प्लीज, जाओ यहाँ से। वो उसे धकेलते हुए बोली। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे ये नहीं कह देती कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। वो अब की बार इत्मीनान से सीने पर बाजू बांध कर बोला तो वो अपना माथा पीट कर रह गए। ओके बाबा, मैंने माफ किया आपको। वो मुसलसल दरवाजे पर होती दस्तक देखकर जल्दी से बोली। अच्छा ठीक है, फिर उस कॉकरोच को भी मार दो ना, तभी जाऊंगा ना। वो जल्दी से बोला तो हुरैन ने झंझलाकर उसे देखा और फिर थूक निगलते हुए पास गई और जैसे ही जूता मारा तो कॉकरोच दीवार से उतरकर जमीन पर भागने लगा। वो दोनों चीखें मारते हुए बेड की जाने भागे और बाहर से दरवाजा मजीद जोर से खटकने लगा था और साथ ही साथ उसकी माँ अनीला बेगम सबको पुकारने लगी थी। किस तरह के शौहर हैं आप? अरे यार, आपको इस कॉकरोच से डर लगता है तो दुश्मनों से हिफाजत कैसे करेंगे? वो चीख कर बोली। अरे दुश्मनों में और कॉकरोच में फर्क होता है यार। मुझे दुश्मनों से डर नहीं लगता, कॉकरोच से लगता है। और वैसे भी तुम्हें पता तो है मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। वो जल्दी से बोला। कसम से आपकी इस बात को सुनकर ना हंसी आ रही है। मुझे दिल तो चाह रहा है जोर जोर से कह के लगाऊं, मगर सिचुएशन ऐसी है कि हंस भी नहीं सकती। इतना बड़ा आदमी और ब्लैक बेल्ट भी, मगर एक छोटे से कॉकरोच से डरता है। वो तब कर बोली। अरे ब्लैक बेल्ट तो मैं इंसानों को फैंटा चढ़ाने के लिए बना हूं, उनको कॉकरोच को मारने के लिए तो नहीं। और मुझे डर नहीं लगता, कराहत आती है इनसे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे हाथ पे लगाऊंगा ना, मुझे वॉमिट होने लगेगी। वो झिंझलाकर बोला। ओह अच्छा, मगर मुझे तो डर लगता है और कराहत वगैरह तो बहुत छोटा लफ्ज है। आप एक काम कीजिए, अगर मुझसे मोहब्बत का दावा है ना और अपनी मोहब्बत से साबित करना चाहते हैं तो मारिए इस कॉकरोच को। नहीं, इसके अलावा, वो तेज लहजे में बोली, वो हर तरीके से तुम्हें अपनी मोहब्बत साबित करूंगा, मगर ये मत कराओ यार। वो बेबसी से बोला तो उसकी शर्ट के कॉलर से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ कर गई। मोहब्बत नहीं है ना, झूठे वादे हैं बस। वो बोली तो इनफाल संजीदगी से उसे देखने लगा। अगर मैंने साबित कर दिया तो फिर जो मैं डिमांड करूंगा वो तुम करोगी ना? डील डन करती हो तो ठीक है। वो इत्मीनान से बोला तो कुछ पल के लिए खामोश रह गई, फिर सर इस बात में हिला दिया। इनफाल थूक निकलता जमीन पर चलते उस काकरोच की जाने बढ़ा जो कि अब ड्रेसिंग टेबल के पास बैठा था। पास जाते उसने अपने जूते से उसे मसला और साथ ही उबकाई लेता वॉशरूम के जाने भागा। वो भी उसके पीछे लपकी तो वो वॉश बेसिन पर झुका वॉमिट कर रहा था। उसने एक नजर उसे देखा और फिर दरवाजे की जानिब जहां सब लोग बाहर इकट्ठे थे। उसने गहरा सांस भरा और वॉशरूम का दरवाजा लॉक करके जाकर कमरे का दरवाजा खोल दिया। अरे क्या हुआ था बेटा? अनीला बेगम ने अंदर आते हुए पूछा तो उसने कॉकरोच की तरफ इशारा कर दिया। तौबा है, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। वो झंझलाकर बोली। और क्या, हमें तो लगा कोई चोर डाकू घुस गया जो आप इतनी चीखें मार रही हैं। वैसे अपिया, आपको तो कॉकरोच से बहुत डर लगता है ना, तो मारा कैसे? उसकी बहन सना ने मशकूक निगाहों से देखते हुए पूछा और इतनी देर में वॉशरूम से कुछ आवाज आई तो सब लोग वॉशरूम की तरफ देखने लगे। इससे पहले कि वो नीला बेगम को रोकती, वो जल्दी से जाकर रोशन का दरवाजा खोल गई थी और उन्होंने हैरानी से वॉश बेसिन पर झुके उस लड़के को देखा जो कि बुरी तरह पेट जकड़े हुए था। फिर वो मुंह साफ करते जैसी पलटा, वो लोग चौंक गए। आप? अनीला बेगम ने आहिस्ता से कहा और फिर सर झुकाए खड़ी अपनी बेटी को अफसोस से देखा। वो मुंह हाथ धोकर बाहर निकला तो सब लोग उससे ही दिलचस्पी से देख रहे थे। वो सब पर एक निगाह डालकर अनीला बेगम की तरफ पलटा। सॉरी आंटी, दरअसल मेरा दिल चाह रहा था आपकी बेटी से मिलने को और मेरा निकाह हुआ इससे, तो इसीलिए मिलने आया हूँ।
मॉम आपको सब कुछ बता चुकी है ना? उन्होंने रिश्ते की भी बात की थी। वो जल्दी जल्दी बोलते जा रहा था। जी जी, हमें सब पता चल चुका है और आपका बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बेटी की बहुत हिफाजत की, लेकिन इस तरह आपको चुप कराने की क्या जरूरत है? आप दरवाजे से भी आ सकते थे। हम आपको कभी नहीं रोकते। ये आपकी बीवी है। वो बोली। थैंक यू सो मच आंटी। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला तो हुरैन जल्दी से उस मरे हुए कॉकरोच की जानिब बढ़ी और उसे टिश्यू से उठाकर बास्केट में फेंक दिया कि कहीं वो नाजुक मिजाज इनफाल चौधरी फिर से उसे देखकर वॉमिट शुरू न कर दे। अरे अपिया, आपने तो कॉकरोच उठाकर बास्केट में डाल दिया, दानिया भी चिल्लाकर बोली। तो सब लोग जल्दी से उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। वो भागकर वॉशरूम की जानिब गई और हाथ मुंह धोकर बाहर आए। कॉकरोच उन्होंने मारा था और मारने के बाद उन्हें वॉमिट शुरू हो गई। मैंने कहा फिर से शुरू ना हो जाए, इसीलिए उठा के बास्केट में डाल दिया। वो अंदर आकर दांत पीसकर उसे देखकर बोली तो वो सर पर हाथ फेर कर रह गया। सीरियसली, आपने कॉकरोच मारा तो वॉमिट होने लग गई? तानिया ने आंखें फैलाकर पूछा। ओ माय गॉड, जो इंसान तुम्हें एक कॉकरोच से नहीं बचा सकता तो तुम्हारी किसी इंसानी दुश्मन से क्या हिफाजत करेगा? उस शख्स से शादी ना ही करो तो बेहतर, उसके चचा की बेटी निदा ने अंदर आकर तंज़े अंदाज में कहा तो हुरैन को गुस्सा आ गया और उसने बेख्तियार इनफाल की जानिब देखा जो लब भींचे खड़ा था। पहली बात, तुम्हें मेरे मामलात में बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं, अपने काम से काम रखो। और दूसरी बात, मुझे इस घटिया आदमी से बचा कर रखो। इनफाल ही लाए थे। और तीसरी बात, ये कॉकरोच या किसी भी चीज से कराहियत आना एक फोबिया है, इंसेक्ट फोबिया। ये जिसमें किसी शख्स को हशरात या किसी मखसूस चीज से कराहत महसूस होती है और यह एहसास इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि वो घबराहट वॉमिटिंग का शिकार हो जाता है। इस फोबिया में मखसूस चीजें जैसे हशरात या कुछ और अशिया से खौफ या कराहत महसूस होती है। वो बोलती जा रही थी और सब चुप हो गए और इनफाल ने उसे मोहब्बत पाश निगाहों से देखा जो उसकी खातिर अपनों से ही लड़ पड़ी थी। अच्छा छोड़ें, आप दोनों बातें करें, मैं कुछ खाने को भेजती हूँ, अनिला बेगम ने कहा। थैंक्स मॉम। वो जैसे पलटी तो इनफाल ने मुस्कुराकर कहा और हुरैन ने उसे चौंक कर देखा। अनिला बेगम तो उसकी मॉम कहने पर निहाल ही हो गई थी और अपनी नम आंखों को साफ करते बाहर निकल गई। सबके जाने के बाद वो उस तरफ मतवज्जो हुआ जो कि गुस्से से इधर उधर टहल रही थी। क्या हो गया? आराम से बैठ जाओ, वो बोला तो गुस्से से पलटी। उसकी हिम्मत कैसे हुई थी आपका मजाक उड़ाने की? वो तब कर बोली तो इनफाल मुस्कुराता उसके मुकाबले आया और उसकी कमर में हाथ रखकर अपने करीब कर गया। दफा मारो, मुझसे बातें करो ना, मैं यहाँ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आया हूँ, वो गंभीर लहजे में बोलता उसके माथे पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ गया। वो सुर्ख चेहरे से रुख मोड़ गई। तुम अभी भी नाराज हो? वो उसे पेछे से बाहों में भरे खुमार आलूद लहजे में बोला तो वो अपनी तेज हुई धड़कन को काबू करती जोर से सरस बात में हिला गई। अरे यार, अब क्यों? मैंने साबित तो कर दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उसकी गर्दन पर अपने लब रखते हुए बोला तो वो थोड़ा सा कसमसाकर खुद को छुड़वाने लगी, मगर उससे गिरफ्त काफी मजबूत थी। उसका रुख अपनी तरफ करते उसके गले में बाहें हायल करती उसके माथे से माथा टिका गया। हाँ तो ठीक है, आपने ये सब किया है, लेकिन अगर इस सब से आपको कुछ हो जाता तो मुझे पता है कभी कभी फोबिया की वजह से आपको पैनिक अटैक हो सकता है। मैंने इस बारे में बहुत रिसर्च किया है। आपने बताया क्यों नहीं कि आपको इंसेक्ट फोबिया है? तो जिस तरह आप वॉमिट कर रही थी उससे मुझे पता चला कि आपको ये सब प्रॉब्लम है। आपको पता है इससे सांस का मसला, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और बाज़ औक़ात लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। वो सख्त गुस्से से बोली। ओह मेरी मल्टी टैलेंटेड वाइफी, तुम किस किस चीज़ पर रिसर्च करती रहती हो? यार बस कर दो अब, वो उसकी नाक के टिप पे लब रखते हुए बोला। बात को बदलने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। वो उससे खुद को छुड़वाती दूर हुई। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें मुझसे प्यार सा हो गया है? वो अपनी मुस्कुराहट दबाते उसे टीस करने के लिए बोला। हाँ तो क्या मुझे आपसे प्यार नहीं हो सकता? और वो एकदम बात करते करते थमी और फिर उसकी आंखें बेयकीनी से फैल गईं। हड़बड़ाकर उसने अपने लबों पर हाथ रखते आंखें जोर से मीच लीं। उफ अल्लाह, क्या बोलने लगी थी मैं आपसे कोई प्यार नहीं करती। वो कहते हुए रुख फेरने लगी तो वो उसकी कमर के गिर्द अपना हसार तंग करता उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखने लगा। ये बात मेरी आंखों में देख कर कहो, वो गंभीर लहजे में बोला तो उसने आंखें खोलकर उसकी आंखों में देखा, मगर फिर दोबारा से आंखें झुका ली। उसकी ग्रे आंखों में देखना वाकई बड़ा मुश्किल था। ऐसे ये लड़कियां नहीं इस पे मरती थी। वो आंखों से बोलता था, बागड़ बिल्ला कहीं का। वो बुड़बुड़ाती खुद को छुड़वाती उससे दूर हुई और उसकी बात सुनकर उसका खूबसूरत कहका कमरे की फजा में इंतशार पैदा कर गया। कुछ देर के बाद अनिला बेगम उनके लिए कुछ खाने को लाई। वो मजे से बैठकर खाते हुए उसे देख रहा था, जो कि कीना तो उस निगाहों से उसे देख रही थी। अनिला बेगम उसे डाल डालकर बड़ी मोहब्बत से खिला रही थी
और ये देखकर हुरैन जलन का शिकार हो रही थी। कुछ देर के बाद वो इजाजत लेकर घर के लिए निकला तो अनिला बेगम ने हुरैन से कहा कि उसे बाहर तक छोड़ा है। वो बाहर आई तो वो गाड़ी में बैठने से पहले उसकी तरफ पलटा और उसे जोर से हक करते उसके माथे पे बोसा देता पीछे हुआ। गुड नाइट माई लव, वो मुस्कुराकर बोलता गाड़ी में बैठता हुआ वहां से चला गया। हुरैन उसके जाते ही शर्मगी मुस्कुराहट से अपने माथे को छूकर अंदर की जाने बढ़ गई। अगले दिन खंसा बेगम ने आकर शादी की तारीख पक्की कर दी थी और शबीर साहब लंदन से वापस आ रहे थे, तो इसीलिए उनके आते ही अगले दिन शादी के फंक्शन स्टार्ट हो रहे थे। जिस दिन सब लोग एंगेजमेंट पार्टी में राना मेंशन गए तो इतने आलीशान घर को देखकर सबने अपनी उंगलियां मुंह में ही दबा ली थी और उसकी कजन से जलन से मरने के करीब थी। वो लड़की जिसको पूरे खानदान में मनहूस कहा जाता था, उसके मुकद्दर इतने बुलंद हो सकते हैं ये किसी ने सोचा ही नहीं था। मेहंदी का फंक्शन होटल में था और मेहंदी के फंक्शन में भी काफी ज्यादा सेलिब्रिटी भी आए थे। फिर फाइनली उनकी शादी का दिन पहुंचा था। आज उनका दोबारा निकाह हुआ था। दोनों को सामने बिठाते दरमियान में दुपट्टा ताना गया था। पहले मौलवी साहब ने इनफाल से निकाह शुरू किया। राना इनफाल चौधरी वल्द शबीर चौधरी, आपका निकाह हुरैन बिनते आसिम से आपके मुकर्रर करदा हक महर में किया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने पूछा। जी कबूल है। फिर से मौलवी साहब ने अपने फिक्रात को दोहराया तो इनफाल ने फिर से कबूल है कहा। 3 बार कबूल है कहने के बाद मौलवी साहब ने हुरैन की तरफ आए। हुरैन बिनते आसिम, आपका निकाह 5 करोड़ रुपए सिक्का राइजुल वक्त में तय पाया है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? हुरैन तो 5 करोड़ का सुनकर ही जैसे साखत रह गई थी और सब लोगों की आंखें जैसे फटी की फटी रह गई। कितना बड़ा अमाउंट दे रहा है, वो भी हक महर में। इन मिडिल क्लास लोगों के हाथों 5 से 10 हजार ज्यादा से ज्यादा देते हैं, तो इकट्ठा 5 करोड़। मौलवी साहब ने फिर से अल्फाज दोहराए तो हुरैन उससे पहले कुछ कहती कि अचानक से उसके फूफा साहब की आवाज गूंजी। 1 मिनट मौलवी साहब, हमारे यहाँ इतना हक महर नहीं तय किया जाता और ये 10 हजार आप कर दीजिए या फिर 50 हजार कर दीजिए, ये बहुत ज्यादा है। अरे ये तो रवाज बन जाएगा ना, और हमारे यहाँ इतने हक महर देने के रवाज नहीं बनते। औरत को उसके औकात में रखना चाहिए, उसके फूफा आसिफ ने मगरूर अंदाज में कहा और उसकी फूफियां भी इस बात में कूद पड़ी थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आसिफ भाई साहब। अरे आज इसका मुकर्रर किया है तो कल दूसरी बेटियों का कम हुआ तो क्या सोचेंगी हमारी बच्चियां? उसकी छोटी फूफो ने कहा तो हुरैन ने जोर से लब भींच लिए। उसे तो ऐसे ये बात सुनाई जा रही थी जैसे उसने ये बात हक महर की खुद की हो, हालांकि उसे खुद नहीं पता था कि उसका हक महर इतना ज्यादा मुकर्रर किया गया है। मौलवी साहब, ये लोग ठीक कह रहे हैं, मुझे हक महर बदल देना चाहिए। मॉम, अगर इजाजत हो तो मैं बदलवा लूं। उठकर खड़े होते हुए बोला तो खंसा बेगम ने हल्का सा मुस्कुराते इजाजत दी। फिर वो मौलवी साहब को साइड पर ले गया और उन्हें सब समझाकर वापस लाया। हुरैन गुमसुम सी बैठी थी और उसके वो अपने जो कहने को अपने थे, उसके निकाह के दिन ये शोशा छोड़कर उसे बहुत बददिल कर गए थे। मौलवी साहब ने दोबारा आकर निकाह शुरू किया। हुरैन बिनते आसिम, आपका निकाह मिस्टर इनफाल की आधी जायदाद के एवज तय पाया है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? मौलवी साहब के सवाल पर सबके मुस्कुराते चेहरे तारीक हो गए और पूरे हाल में फिर से सन्नाटा छा गया और वो बेयकीनी से सर उठाकर मौलवी साहब की तरफ देखने लगी। खंसा बेगम ने उसके पास आकर उसका हाथ थामकर मुस्कुराकर सर हिला दिया। मौलवी साहब ने फिर से अल्फाज दोहराए। उसकी आंखें झलक उठी। कबूल है, वो हिचकियों के दरमियान बोली। फिर 3 बार कबूल है कहने के बाद खंसा बेगम ने उसे साथ लगाते उसका माथा चूमा। वो उनके गले लगे फूट फूट कर रो दी। ये सब क्या किया आप लोगों ने? तमाशा है कोई? मौलवी साहब के जाते ही आसिफ साहब फिर से चीख उठे। तमाशा तो आप लोगों ने बनाया है और बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे बता दिया कि औरत की औकात क्या होती है और मैंने अपनी बीवी की क्या औकात और हैसियत है यहाँ पर वाज़ेह कर दी। ये तो सिर्फ आधी जायदाद थी, मैं तो अपनी पूरी की पूरी उसके कदमों में लुटा दूं और आइंदा से मुझसे इस अंदाज में गुफ्तगू मत कीजिएगा। ये मेरी बीवी है और मैं इस पर जितना चाहे खर्च करूं, आप में से कोई मुझसे सवाल करने वाला नहीं है। आइंदा से किसी मामलात में बोलने से पहले 100 बार सोचिएगा। वो सर लहजे में बोला और फिर उसके बराबर खड़े होते हुए उसके हाथ थाम लिए। वो तशक्कुर भरी निगाहों से उस इंसान को देख रही थी जिसने आज सबकी निगाहों में उसे मोतबर कर दिया था। फिर कुछ देर के बाद वो रुखसत होकर राना मेंशन पहुंच चुकी थी। कुछ रसूमात के बाद उसे इनफाल के कमरे में भेज दिया गया। लंबा घूंघट निकाले उसके मुंतजर थे। जब भी वो कमरे में आया और चलता उसके पास आकर बैठ गया, वो जैसे खुद में सिमट सी गई। फिर वो उसका घूंघट उल्टा कर उसके माथे पर शिद्दत भरा लम्स देता पीछे हटा और अपने पॉकेट से एक मखमली केस निकालकर उसे खोलता सामने कर गया। उस केस में एक हार्ट शेप पेंडेंट था जिस पे डायमंड से AH लिखा था। मैं जानता हूँ ये तुम्हारी हैसियत के मुताबिक नहीं, मगर ये छोटा सा तोहफा कबूल कीजिए मिसेस इनफाल चौधरी।
मुस्कुराते हुए बोला तो वो पीठ मोड़ कर बैठ गई। इनफाल ने उसके गले में उस लॉकेट को पहनाया और फिर उसे यूं ही अपने हसार में लिए बेड क्राउन लगा गई। आपने हक महर इतना ज्यादा क्यों दिया? वो झिझकते हुए बोली। इतना दिया जितना तुम डिजर्व करती हो, और मेरे ख्याल में हर लड़की को इतना हक महर देना चाहिए जो उसका शरीक हयात आसानी से दे सके। यादी जायदाद मेरे लिए अहमियत नहीं रखती, मगर इस दुनिया के लिए रखती है। लोग उसी दौलत की वजह से मुझे अहमियत देते हैं। अगर ये मेरे पास ना हो तो ये जो मेरे आगे झुककर सलाम होते हैं ये भी ना हो। तो मैंने लोगों के नजरिए से तुम्हें हक महर दिया है, और वैसे भी ये सबका मदावा है जो मैंने अल्फाज तुम्हें बोले थे, नहीं बोलने चाहिए थे। वो बहुत गलत बोला था, उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने मुझे मोहब्बत करना सिखाया है, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, सबसे ज्यादा। वो धीमे लहजे में बोलता उसके कानों में रस घोल रहा था, और रैन की आंखें खुशी से झलक उठी थी। वो इतनी मोतबर हो सकती है ये उसने कब सोचा था। जिस लड़की को मनहूस कह कहकर उसका जीना हराम किए रखा, आज वो शख्स उसे इन सब में इतना मोतबर कर चुका था कि सबकी जुबानें बंद हो गई। और वो जानती थी कि आज के बाद कोई हुरैन इनफाल चौधरी को मनहूस और कमबख्त नहीं बोलेगा। वो आसूदा अंदाज में उसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई। वो उसे अपने हसार में लिए उस पर अपनी शिद्दतें बरसाने लगा। बाहर चांद उन्हें देखकर शर्माता बादलों में छुप चुका था।